Yeah, so let's have a bit of introduction. So, as you all know, yeah, my name is Manpreet, and I am working in Infosys from last 2 years as a specialist programmer. So, yeah, I have worked in Spring and all web development projects, and currently I am working as an automation developer. So, you all are from same college, right? Or Sir, your voice is now again lost. okay, why is it getting low? Is it better now? Why is it getting low? Yes, sir. Okay. So yeah. So you all are same college, right? And you all are in fourth year. Sir, your voice too low again. Don't know why it is. Let me check. Let me check once. Hello. Uh, I don't know the voice. This
it fine? Yes, sir. Okay. I guess it is getting low again and again. Uh, what do? Let me join from my phone today. Then you can tell if it is fine. Then we can continue. Otherwise, I will join with my phone. So, is it fine right now or it is not? Sir, it is not consistent. Okay. Sometimes you're fine and sometimes it is not Mm-hmm. that good. Okay. So yeah, let me join with my phone then. So okay. So I guess the issue should be resolved now. I have stopped that auto. Okay, is it fine? Right. Yes, sir. Okay, okay. Yeah. So the issue is resolved now. Yeah, okay. So yeah, let's continue then. Now, so when do you have that? I guess you have that placement drive, right? When do you have on what date and it is? Sir, we don't know it yet. Okay, okay. So yeah, so let's start. We will study complete DBMS, not just SQL. So if required, we will do SQL only. We can do SQL only if required for the drive. So, but we will start with complete DBMS syllabus. So, as you are all in, I suppose you are all in fourth year, right? Everyone is in fourth year here. Yes, sir. Okay, okay. So, yeah, so you would already have studied DBMS in third year or second year, and you would be having a quite few knowledge about DBMS. So I would like to start by asking you only where do you stand? What do you feel? Where do you stand in terms of DBMS and SQL? So have you studied good enough to clear the interviews, or what is it that you feel? Is it are you good? All of you are good in DBMS, or you feel that you lag somewhere? So let's start with Praneeth. Yeah, quick. We will be quick. Yeah. So hello, I'm audible, right? Yes, sir. Yeah, yeah. So you can, Praneeth, you can tell. So yeah, you can tell. So these sessions are they always in English, or we
other teachers say English, Hindi, or what is it? Sir, both. Okay. Sir, both languages. Okay, sure. So yeah, मतलब DBMS पढ़ा ही होगा ना, अभी 3rd और 4th ईयर में हो तो सब पढ़ ही चुके होगे, 3rd 4th, Yes, sir. है ना? तो कैसे रहे, मतलब कैसा, कितना आता है, क्या है, कैसे पढ़ाया सही गया है कॉलेज में या नहीं सही पढ़ाया गया? सर बेसिक ही आता है जो कॉलेज में नॉर्मली सिलेबस में था, बस उतना ही पढ़ा। नहीं, सिलेबस वाला ही एक्चुअली ओवरऑल ठीक ही होता है अगर अच्छे से किया हो तो। उसमें एसक्यूएल, नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरीज तो तुम लोग लिख लेते होगे, राइट? यस सर, नॉर्मल इंसर्ट एंड डिलीशन वगैरह और अपडेट वगैरह की जो थी, है ना? हाँ, और ईआर डायग्राम्स पढ़े हुए हैं? ईआर डायग्राम्स सर, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। हाँ, ठीक है। तो आज का मतलब क्लास में वही रहेगा, तो स्टार्टिंग उसी से करेंगे क्योंकि शुरुआत उसी से होती है डीबीएमएस की भी। तो सबसे पहले तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है? तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Sorry. So yeah, let's see what so जल्दी देखते हैं, है ना? तो डेटा क्या होता है हमको पता है, राइट? डेटा क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी रिकॉर्डेड और दैट कैन बी स्टोर्ड, अ बेसिक फैक्ट, दैट इज डेटा, राइट? जिसको हम सेव कर सकें। और डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग डेटाबेस कहते हैं, ठीक है? लॉजिकली कोहेरेंट और इंटर रिलेटेड डेटा जो होता है उसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है? अ कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटाबेस। और डीबीएमएस क्या होता है हमारा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा, जो हमको यूज में आता है किस चीज के? आई गेस स्क्रीन सबको विजिबल होगी, राइट? यस सर। ओके, ये सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा डेटाबेस को मैनेज करने में हमारा मदद करता है, जैसे क्रिएटिंग टेबल, क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स, मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स और डिलीटिंग रिकॉर्ड्स। तो जैसे कि डीबीएमएस का कोई एग्जांपल बताएगा जल्दी से, एक, है ना? कोई भी? Oracle DB, Oracle हो गया, MySQL हो गया, MySQL, SQL Server। हाँ। और डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? पूरा इनको डीबीएमएस और डेटाबेस दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? डेटाबेस सिस्टम, ठीक है? तो डेटाबेस क्या हो गया? हमारा डेटा जिसपे हमको काम करना है। जैसे हमारे पास अगर टेबल्स हैं, कुछ स्कीमा बने हुए हैं, जैसे एम्प्लॉय टेबल हो सकता है, स्टूडेंट टेबल हो सकता है, ये सारे जो टेबल्स हैं ये दीज आर द पार्ट ऑफ द डेटाबेस, ठीक है? ये हमारा जो हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है ये हमारा पार्ट ऑफ द डेटाबेस है, ठीक है? और जिस चीज का, जिस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लोग, जिस एप्लीकेशन का हम लोग यूज करके इसको मॉडिफाई, क्रिएट या डिलीट कर सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो हमारा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डीबीएमएस होता है, ठीक है? अब हम डीबीएमएस यूज क्यों करते हैं? क्योंकि पहले जैसे हम लोग यूज कर रहे थे, पहले हम लोग फाइल सिस्टम यूज किया करते थे, फाइल्स में सब डेटा रहता था, बट उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की। जैसे रिडंडेंसी ज्यादा है, बहुत सारी फाइल्स हैं जिसमें सेम डेटा हो गया, अब उसको कैसे मैनेज किया जाए, है ना? एक्सेस करना है डेटा, फिर सेम चीज है, कई फाइल्स में हमारे पास डेटा है, फिर उसको एक्सेस करना है तो एक्सेस में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? डेटा आइसोलेशन करना है, अब डेटा कई फॉर्मेट में स्टोर हो सकता है एक एप्लीकेशन
किसी भी फाइल में, कोई फाइल हो सकती है, वर्ड फाइल हो, कोई XML फाइल हो सकती है, कोई दूसरी फाइल हो सकती है। तो इन सबको आइसोलेट करना और फिर साथ में इनको मिला के एक सॉल्यूशन बनाना, इंटीग्रेट करना बाद में इनको, ये सब भी दिक्कत आती है। कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज, मतलब एक साथ कई लोग अगर एक डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो वो होना चाहिए फीचर, बट उसको मेंटेन करना कि सब लॉक लगाना या ये सब मैनेज करना, उसके लिए फिर हमारे पास फाइल में कोई ऐसा फीचर नहीं है। एटॉमिसिटी मेंटेन करना, जैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है तो वो पूरा खत्म हो जाए या बीच में फेल हो गया तो उसको कैसे मतलब हम लोग हैंडल करेंगे इन फाइल, ये सब नहीं है। सिक्योरिटी, जैसे हम लोग कई रोल्स असाइन करते हैं कि ये DB एडमिन है, ये कोई और यूजर है ना, ये सारे रोल्स हम लोग उसमें असाइन नहीं कर सकते हैं फाइल में। बट तो डिफरेंट प्रिविलेजेस अगर हमको देने हैं तो ये पॉसिबल नहीं रहता है फाइल में। तो ये सारी जो डिसएडवांटेजेस हैं दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ DBMS। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस हमारी एडवांटेजेस हैं DBMS की। सो जैसे नो, इसके आगे सबके आगे अगर हम लोग नो लगा दें तो यही हमारा एडवांटेज हो जाएगा, किसका? DBMS का। तो जैसे नो इनकंसिस्टेंसी, सो इनकंसिस्टेंसी नहीं रहेगी डेटा में, कहीं भी जहां पर भी डेटा है, जैसे हम लोग वो लगा सकते हैं, हमारे पास जैसे फॉरेन की है, ठीक है, तो एक जगह किसी की आईडी अगर चेंज हो रही है कहीं पे भी, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का कुछ बैंक डिटेल्स हैं, तो अगर एम्प्लॉय आईडी चेंज हो रही है तो साथ में हमने अगर उसका फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है बैंक डिटेल्स में, तो साथ में हम वो भी दूसरी जगह भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो फॉरेन की ये हो गया फॉरेन की मदद से। और ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए एटॉमिसिटी और ये सारी चीजें क्या हैं? एडवांटेज। सिक्योरिटी के लिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट हम रोल्स असाइन कर सकते हैं यूजर्स को, ठीक है, कौन एडमिन है, किसको रीड एक्सेस है, किसको राइट एक्सेस है। तो ये सारी चीजें आगे अभी और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब SQL और बाकी डिपेंडेंसीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर से हल्का वो था। अब आते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन पे। तो जितना डेटा हमको देखना चाहिए, हर यूजर के लिए हर डेटा जरूरी नहीं है देखना, ठीक है। जैसे अगर कोई किसी एप्लीकेशन का यूजर है, जैसे बैंक में काम करने वाला बंदा है, तो उसको डेटाबेस का स्कीमा देखने की जरूरत नहीं है। उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि टेबल में कितनी रोज हैं, टेबल में कितने कॉलम्स हैं, ये सब से उसको मतलब नहीं है। उसको क्या मतलब है कि उसको अगर वो किसी बंदे का डिटेल डाल रहा है तो उसको उसका जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो मिलना चाहिए। तो इसलिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। सो जैसे व्यू लेवल क्या हो गया, मतलब जो बैंक मैनेजर के लिए हमारा डेटा है वो अलग है, सेम डेटा, और वही डेटा हम लोग भी एक्सेस करते हैं। हमारे लिए वो डेटा इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मान लो कोई अगर DB एडमिन है तो वो अगर वही डेटा जिसने उस एप्लीकेशन को बनाया है तो वही डेटा उसके लिए एज अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। बट जो बैंक मैनेजर है या कोई भी बंदा जो बैंक में काम कर रहा है उसके लिए वो डेटा रोज का और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो फिजिकल लेवल पे किस तरीके से कौन सा हम डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, बी ट्रीज यूज कर रहे हैं या एरेज यूज कर रहे हैं या कुछ भी यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं हम अपना डेटा स्टोर करने के लिए, या फाइल्स ही यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड में, तो वो हमारा क्या होता है फिजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल जैसे हमारा टेबल हो गया, किस तरीके से हम रोज और कॉलम्स में स्टोर करके इसको डेटा को हैंडल कर सकते हैं। और व्यू लेवल मतलब कौन सा यूजर जिस हिसाब से किसका यूज है उसको वो डेटा कैसा लगता है। तो ये 3 तरीके के एब्स्ट्रैक्शंस हैं। मतलब व्यू सबसे बड़ा एब्स्ट्रैक्शन है ना। तो हर बंदे को डेटा जो है वो अलग अलग दिखेगा। अब आते हैं डेटा मॉडल पे जल्दी से।
तो डेटा मॉडल ये थोड़ा सा अभी थ्योरी शुरुआत में है इसमें, बट बस एक ही चैप्टर में है ऑलमोस्ट, सबसे ज्यादा पहले में ही थ्योरी होगी, बाकी में तो फिर एसक्यूएल और वो सब है, तो उसमें इतना ज्यादा नहीं होगा। फिर डेटा मॉडल क्या होते हैं, जैसे हम लोग किसी भी डेटा को अगर डिस्क्राइब करना होता है तो कई तरीके के मॉडल्स होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हो गया, ठीक है, ईआर मॉडल हो गया, रिलेशनल मॉडल हो गया, मतलब किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करेंगे और उनके बीच में हम कैसे लॉजिकल रिलेशन बताएंगे, उस चीज को हम लोग डेटा मॉडल कहते हैं। तो दो तरीके के मेन होते हैं, फिजिकल, दो मेन कैटेगरीज होती हैं, फिजिकल डेटा मॉडल और लॉजिकल डेटा मॉडल। सो फिजिकल में हमारा रिलेशनल मॉडल आ जाता है, जो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल है, जैसे कि टेबल्स। सो टेबल्स आर फिजिकल डेटा मॉडल जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। और लॉजिकल डेटा मॉडल, जिससे हम लोग डेटा को केवल एक लॉजिकल तरीके से समझने के लिए हम इस मॉडल का यूज करते हैं, जैसे कि ईआर मॉडल, ठीक है। रिलेशनल मॉडल क्या होता है, रिलेशनल मॉडल में हमारा किसने दिया था, ईएफ कॉर्ड ने 1970 में, और कलेक्शन ऑफ टेबल्स टू रिप्रेजेंट डेटा एंड रिलेशनशिप। सो डेटा और रिलेशनशिप दोनों बताता है ये इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, ये सारी चीजें टेबल में स्टोर्ड हैं, और उनके साथ में एक ही रो में है, तो उनके साथ में रिलेशनशिप भी है डेटा के बीच में, ठीक है। या फॉरेन की के थ्रू एक से दूसरे एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो ये रिलेशनल मॉडल का एक एग्जांपल हो गया, जैसे ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। टेबल में एक क्वेश्चन अच्छे से आ जाता है, जो कि बढ़िया क्वेश्चन होता है, मतलब गेटेड में भी पूछ लिया जाता है, कार्डिनलिटी और डिग्री। सो कार्डिनलिटी का क्या मतलब होता है, कितनी रोज हैं, ठीक है, किसी टेबल में, वो होता है कार्डिनलिटी। सो इस टेबल में कितनी रोज हैं, इधर 2 है, कितनी है, 2 है, 3 है, 2। ये हेडिंग नहीं गिनेंगे क्या? चलो ठीक है, हेडिंग से मतलब नहीं है, हमारे पास डेटा कितना है। तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। इसको याद कर लेना, ऐसे कर सकते हो, जैसे कॉलम है तो सी से जो चालू होता है वो सी से नहीं होता है, ठीक है। कॉलम और कार्डिनलिटी एक बात नहीं है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू डिग्री, ठीक है, और रोज जो है वो कार्डिनलिटी है। तो याद मैंने ऐसे किया हुआ है कि जो सी से है वो सी से नहीं है ना। तो कॉलम्स जो है वो डिग्री के बराबर है, तो वो 4 है, और कार्डिनलिटी जो है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर है, यहाँ पर वो 2 है, ठीक है। मेन चीज जो है अब ये है ईआर डायग्राम, ठीक है। अभी मेन चीज क्या है आज का, ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम में क्या होता है, जैसे सबसे पहले देखो, डायरेक्ट हम लोग टेबल नहीं बनाते हैं, तो टेबल से पहले हम लोग ईआर डायग्राम बना लेंगे। ईआर डायग्राम में क्या होता है, हमारे पास मान लो रिक्वायरमेंट होती है कुछ ना कुछ, कि ये बंदा ये काम करेगा, इस बंदे के लिए, जैसे मान लो अगर एक रिक्वायरमेंट देखी जाए, तो जैसे मान लो अगर लाइब्रेरी का हम लोग को डेटाबेस बनाना है लाइब्रेरी के लिए। सो लाइब्रेरी में क्या होता है, हमारे पास कुछ ना कुछ डिटेल्स होंगी, जैसे एक स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी से, मैनी स्टूडेंट्स कैन इशू बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, ठीक है। और फिर क्या है, स्टूडेंट इशू कर सकता है कितने दिन के लिए बुक्स, ये सारी चीजें हमारे पास होंगी। उससे हम क्या करेंगे, ईआर मॉडल बना लेंगे, ठीक है। ईआर मॉडल का मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। अब मेन टॉपिक ईआर मॉडल ही है आज का, सो वो देखते हैं। जैसे अब तुम लोग को सिंबल्स पता है ईआर डायग्राम बनाने के लिए, सिंबल्स यू नो क्या होते हैं, किसके लिए क्या यूज होता है, ठीक। देखो
जो एंटिटी होती है हमारी, एंटिटी मतलब कोई कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे कोई नाउन होगा, जैसे मान लो अगर लाइब्रेरी का डेटा हमको बनाना है, ठीक है, लाइब्रेरी का डेटा, तो लाइब्रेरी के डेटा में डेटाबेस में हमारे पास जो एंटिटी होंगी वो स्टूडेंट होगा, लाइब्रेरी खुद होगी, है ना, और अपने पास बुक्स होंगी, ठीक है, और क्या होंगी लाइब्रेरी में एंटिटी, अब मेरे हिसाब से यही तीन, और फैकल्टी भी अगर है, फैकल्टी का अलग बन रहा है तो फैकल्टी हो सकती है एक एंटिटी। कोई बोलने का ट्राई कर रहा है क्या? ठीक है, चलो देखते हैं। तो एंटिटी क्या होती है? कोई भी एक नाउन को तुम लोग, एक्चुअली में ज्यादातर जो नाउन्स होते हैं वो हमारे एंटिटी बनती हैं, ठीक है। तो एंटिटी को हम ईआर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ईआर डायग्राम में हम एंटिटी को रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर एंटिटी भी हमारी दो तरीके की है, जैसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी, ठीक है। वीक एंटिटी में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी का खुद का एक प्राइमरी की होती है, ठीक है। प्राइमरी की तुम लोग को पता होगा ना, प्राइमरी की, ठीक है। ओके, क्या होती है वैसे, कोई बताए? A column in which no two data can be similar or same. No two entries can be same. अच्छा, ये तो चलो ठीक है, ये तो एक उसकी प्रॉपर्टी हो गई प्राइमरी की। Sir, which defines each of the rows uniquely. हाँ, ये प्राइमरी की होती है। देखो, वो जो तुमने पहले बताया था कि उसमें कोई वैल्यू दो बार नहीं हो सकती, वो सही बात है, वो यूनिक रहती है। और एक चीज और बोल सकते हो, उसमें नल भी नहीं होती है। लेकिन डेफिनेशन प्राइमरी की ये होती है कि ऐसा एक कॉलम, ऐसी एक वैल्यू जिससे हम, जिसको अगर हम, जिसकी अगर हम वैल्यू बोल दें तो वो एक सिंगल रो हमको बता सके, मतलब जो यूनिकली डिफाइन करे एक पर्टिकुलर टपल को टेबल में, टपल मतलब रो को। सो जैसे कि मान लो हमारे पास एम्प्लॉय में, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय छोड़ो, तुम लोग को स्टूडेंट्स का, तुम अपना स्टूडेंट अगर टेबल है हमारे पास, तो स्टूडेंट टेबल में हमारी प्राइमरी की क्या हो सकती है? सर, रोल नंबर। रोल नंबर, है ना। ये क्यों रोल नंबर प्राइमरी की हो सकती है? क्योंकि रोल नंबर जो है सेम नहीं हो सकता, वो सेम नहीं हो सकता। और अगर हम तुम्हारे रोल नंबर की अगर बात करें, तो तुम्हारा रोल नंबर हम जब भी हम सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू दिस, ये जब भी हम चलाएंगे तो केवल एक ही रो हमको मिलेगी, दो या तीन या चार रो हमको नहीं मिल सकती। तो ऐसी वैल्यू जो हमको क्या दे दे, एक यूनिक वैल्यू हमको आंसर में दे दे, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, वो हमारी क्या होती है? प्राइमरी की। अब चलो छोड़ो, रोल नंबर मान लो नहीं है, रोल नंबर नहीं है अपने पास, तो क्या प्राइमरी की बन सकती है हमारी स्टूडेंट की? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर हमारी प्राइमरी की बन सकती है। तो प्राइमरी की क्या होती है? जो हमारा किसी भी एक रो को आइडेंटिफाई कर सके यूनिकली। सो स्ट्रॉन्ग एंटिटी वही होती है जिसकी खुद की एक प्राइमरी की हो सकती है। जैसे अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में हमारा क्या है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। बट स्टूडेंट के पेरेंट्स की अगर या किसकी बात, हाँ पेरेंट्स की, तो स्टूडेंट के पेरेंट्स का क्या कोई ज्यादा वो है, रिक्वायरमेंट है, मतलब उस हिसाब से डेटा में वो रखने के लिए? स्टूडेंट है तो उसके पेरेंट का कोई मतलब है ना। अगर कॉलेज में कोई स्टूडेंट है तो उसके पेरेंट का मतलब है। तो स्टूडेंट नहीं होगा अगर, तो उसके पेरेंट का डिटेल नहीं होना है ना। तो जो एक इससे रिलेटेड है, हाँ पर्सन लॉजिकली पेरेंट है तभी तो स्टूडेंट है। लेकिन कॉलेज के लिए तो स्टूडेंट है तब पेरेंट है ना।
या तुम वो वाली बात कर रहे हो, तुम तो अंडा पहले आया है मुर्गी है। तो लॉजिकली उसकी बात मत करो। लॉजिकली का मतलब क्या हुआ? लॉजिकली वो तुम्हारी बात सही है, पेरेंट है तो स्टूडेंट है, बट क्या कॉलेज के लिए पहले पेरेंट है या पहले स्टूडेंट है? जब कॉलेज में, हाँ सर कॉलेज के लिए तो फीस है सबसे पहले। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ये भी बात सही है। ठीक है ठीक है। अच्छा अभी के लिए वैसे अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो, तो वो सर स्टूडेंट। हाँ मतलब स्टूडेंट और पेरेंट की बात करी जाए अगर, तो कॉलेज के लिए पहले स्टूडेंट है, फिर पेरेंट अगर जो है वो स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है, मतलब स्टूडेंट होगा तो पेरेंट होगा। तो उसके लिए अगर उनके पास प्राइमरी की है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, वो चेक बस इतना करेंगे कि स्टूडेंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके पेरेंट का क्या वो है, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी को फॉरेन की मान के हम पेरेंट स्टोर कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि फिर उसकी पेरेंट की जो प्राइमरी की होना जरूरी नहीं है, ठीक है। हम पेरेंट के टेबल में स्टूडेंट की आईडी केवल स्टोर कर सकते हैं, और वही हमारा उसका जो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। सो ये हमारा सर तो वीक एंटिटी की जरूरत क्या होती है? मतलब वीक एंटिटी की जरूरत कुछ नहीं होती है, वीक एंटिटी तो एंटिटी ही होती है। जरूरत क्या होगी? जैसे अब पेरेंट है तो अब तुम कहो कि पेरेंट की जरूरत क्या होती है, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो स्टूडेंट है तो पेरेंट तो होगा ही ना। अब उसका सर डेटाबेस के हिसाब से, डेटाबेस के हिसाब से भी तुम्हारा स्टूडेंट टेबल है। तुम अगर किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो उनके पास पेरेंट का रिकॉर्ड भी होगा, बट वीक एंटिटी है वो बात अलग है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखेंगे अगर कॉलेज वाले, तो पेरेंट्स का भी रखेंगे। जरूरत क्या है? वो तो जरूरत है ही कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो पेरेंट का होगा ही ऑब्वियसली, है ना। वो प्राइमरी की उसमें है या नहीं है वो बात की बात है। प्राइमरी की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। कुछ मतलब कोई और कुछ डाउट है क्या? नहीं नहीं मजा आया क्या? नहीं सर ठीक है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये मेन चीज तुमको सिंबल्स याद रखने हैं, ठीक है। जो सिंगल रेक्टेंगल है उससे हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी डिफाइन करते हैं। जो डबल रेक्टेंगल होते हैं, डबल वाले, इससे हम वीक एंटिटी, इस जो वीक एंटिटी होती है वो हमारी क्या कहते हैं उसको, जो वीक एंटिटी होती है वो उसकी प्राइमरी की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। सो अब रिलेशनशिप, सो एंटिटी और रिलेशनशिप दो ही मेन जो फीचर्स होते हैं ईआर डायग्राम के। रिलेशनशिप हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे तुम स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट एक होगा, वो पर्टिकुलर किसी एक ब्रांच में होगा। तो स्टूडेंट एक अगर ब्रांच में है तो हम कैसे बना सकते हैं उसको? स्टूडेंट अगर एक ब्रांच में है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं? सो स्टूडेंट तो हो गया अपना रेक्टेंगल हो गया, है ना। और फिर हमारा वो किसी एक ब्रांच में है, ब्रांच भी क्या होगी? ब्रांच क्या है? रिलेशनशिप है या एंटिटी है? क्या है ब्रांच? एंटिटी। ब्रांच एक एंटिटी है, ठीक है। मैंने बताया था ज्यादातर तुमको जो अपना वो होगा, क्या कहते हैं, जो ज्यादातर जो नाउन्स है ना वो हमेशा एंटिटी फॉर्म करती हैं। जैसे स्टूडेंट हो गया, ब्रांच हो गई, और अपना एम्प्लॉय हो गया, लाइब्रेरी हो गई, बुक्स हो गई, ये सारी चीजें क्या फॉर्म करती हैं? ये सारी चीजें होती हैं एंटिटी, ठीक है। और जो उनके बीच में रिलेशनशिप है वो हम लोग किससे दिखाते हैं? वो हम लोग दिखाते हैं ट्राइंगल से या डायमंड से, कुछ भी बोल लो। सो
अगर हम, ये हमारा स्टूडेंट है अगर, तो स्टूडेंट, फिर बीच में एक लाइन है ना, स्टूडेंट बिलोंग्स टू अ ब्रांच, ठीक है। हम इसमें लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये वाले में। अभी वो मैं देखता हूँ ये लिखना कैसे है, अभी देखते हैं। तो ये वाला हमारा स्टूडेंट एंटिटी हो गया, बीच में एक हमारी लाइन भी रहेगी, ठीक है। ये बनाया हुआ है ना तुम लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, तो स्टूडेंट, then this and then this. So student belongs to a branch, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर हम लोग ये बताते हैं कि उसकी क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बताते हैं इस लाइन के ऊपर, कि एक ही स्टूडेंट होगा। जैसे वन लिखेंगे तो वन का मतलब है कि सिंगल स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस वाले में क्या आना चाहिए, इस एग्जांपल में स्टूडेंट बिलोंग्स टू ब्रांच, यहाँ पर वन आना चाहिए या मैनी आना चाहिए, एम या एन कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सर एन आना चाहिए। अच्छा, ये एक ही बंदा बोल रहा है क्या, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, सुन रहा है। बाकी लोग सुन रहे हैं, सो मत जाना बस, ठीक है। तो ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ मतलब समझ आ रहा है ना अच्छे से, कुछ वो तो नहीं है कि अभी थोड़ा सा वो रहेगा आज, बाकी एसक्यूएल चालू करेंगे और वो सब करेंगे, थोड़ा आज सेट होने में थोड़ा सा वो लगेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट है, बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा या क्या बोला था तुम लोगों ने? वन आएगा, ठीक है। सो मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू, यहाँ पर क्या आएगा, ब्रांच वाली साइड, ब्रांच वाली, वन। हाँ वन, या इधर भी एन आ सकता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स कई ब्रांचेस, मतलब अगर केवल जैसे अगर सर और ब्रांचेस हैं तो एन आ सकता है। हाँ, एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो अगर एक से बाकी बच्चे दूसरी ब्रांच में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग यार डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कुछ एक दो। तो पहला वाला हम जैसे हमारे पास मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि वन सप्लायर, एक हमारे पास, ये तुम लोग लिखो, अपने खुद से लिखो तो ज्यादा सही रहेगा। वन सप्लायर कैन प्रोवाइड मैनी कोटेशंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा कि फॉर एवरी, ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं तुम लोगों ने, क्वेश्चंस किए हैं ऐसे? हेलो, ईआर डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं? यस सर। ठीक है, ये एक यूज केस है, इसका ईआर डायग्राम तुम लोग बना के अच्छा इस पे भेज पाओगे क्या अभी क्लास में? इसमें है क्या ऑप्शन फोटो डालने का या कुछ ऐसा हो सकता है? फोटो भी शेयर कर सकते हो आप। कर सकते हैं ना? नहीं तुम लोग, मैं नहीं, तुम लोग इसका आंसर अगर देना चाहो तो तुम लोग शेयर कर सकते हो क्या? सर फोटो शेयर तो नहीं हो पाएगी पर बता सकते हो। अच्छा बता सकते हो, अरे इसमें टाइम लग जाएगा। चलो ठीक है, इतना देख लेते हैं बस, 4 पॉइंट बहुत है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करते हैं ईआर डायग्राम बनाने के लिए, सबसे पहले क्या करते हैं, पहला काम क्या होता है,
सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है ईआर डायग्राम, कोई बताएगा? ये हमारे पास वो है, रिक्वायरमेंट है हमारी कि एक सप्लायर है जो कोटेशंस दे सकता है। कोटेशंस पता है ना तुम लोग को, कौन सी चीज कितने की है ये सब लिखा होता है कोटेशंस में, ठीक है? वो हो गया कोटेशंस। तो हमारे पास एक सप्लायर हमको कई कोटेशंस प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एवरी आइटम देयर विल बी अ सेपरेट कोटेशन, हर आइटम के लिए अलग कोटेशन होगी। मैनी सप्लायर्स कैन कोट फॉर द सेम आइटम, कई बहुत सारे सप्लायर्स सेम आइटम की कोटेशंस दे सकते हैं। मैनी आइटम्स कैन बी आउटवर्ड टू द सेवरल। इसका मतलब एक्चुअली इसको चेंज कर लेते हैं। सब लोग नहीं आता क्या? ये बोलो हाँ या ना बोलो यार, मैं बताऊं, खत्म करें। पहला स्टेप क्या होता है ईआर डायग्राम बनाने के लिए? सबसे पहले क्या करोगे? हाँ या ना बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हमारी एंटिटीज क्या हैं, ठीक है? और एंटिटीज क्या होती हैं? जो नाउन दिख रहा है ना तुमको इन स्टेटमेंट्स में, वो सारी तुम्हारी एंटिटीज हो जाएंगी। जैसे कि ये सप्लायर क्या है तुम्हारा? सप्लायर एक एंटिटी हो गई, ठीक है? कोटेशंस ये भी नाउन है, ये भी तुम्हारी क्या हो गई? एंटिटी हो गई, ठीक है? फिर आता है हमारा आइटम, तो ये आइटम भी क्या हो गया? हमारी एक तीसरी एंटिटी हो गई इसमें। फिर क्या है? मैनी सप्लायर्स कैन कोड फॉर सेम एंड मैनी आइटम्स कैन बी आउटवर्ड टू द। इस लाइन का एक्चुअली मतलब सही नहीं है, बट इसका ऐसे मान सकते हो कि वो आइटम कई रिटेल आउटलेट्स पे मिलेगा। इसकी इंग्लिश चेंज कर लेंगे बाद में, तो अभी के लिए इतना समझो। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने पहले स्टेप में क्या किया? हमने पहले स्टेप में सारे सब जो एंटिटीज थी उनको अंडरलाइन कर लिया, ठीक है? एंड ये स्टेप्स लिख लेना। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटीज, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटीज। अब ये हमने कर लिया है। अब दूसरा काम क्या करना है हमको? इन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बतानी है विद कार्डिनलिटी, मतलब वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है, या क्या रिलेशनशिप है। सो अगर हम सप्लायर और उसकी बात करें, एक मिनट रुको, इसके अंदर लिखते हैं। अगर हम सप्लायर, तो यहाँ पे ये हमारा सप्लायर है। सप्लायर one supplier can provide many quotations। तो यहां पर क्या आ गया? quotations, ठीक है? और कार्डिनलिटी की अगर बात की जाए तो कार्डिनलिटी में यहां पर क्या आएगा? यहां आ जाएगा 1 और यहां पर मैनी, यहां पर मैनी, ठीक है? तो सो वन सप्लायर, और बीच में यहां हम लिख लेंगे लिख लो बिलोंग्स, सॉरी, कैन प्रोवाइड्स। तो ये पहला हमारा वो बन गया, क्या? पहला बन गया हमारा, पहली लाइन का हमने रिलेशनशिप बना ली कि सप्लायर और कोटेशंस के बीच में रिलेशन क्या है, और साथ में कार्डिनलिटी भी लिख दी, जैसे वन सप्लायर कैन प्रोवाइड मैनी कोटेशंस, ठीक है? अब नेक्स्ट वाली लाइन में क्या है? फॉर एवरी आइटम देयर विल बी अ सेपरेट कोटेशन। सो अब इसमें कोटेशन क्या है? फॉर एवरी आइटम देयर विल बी, क्या बनेगा फिर इसका? आइटम, हाँ, सो इधर हम लोग लिख सकते हैं क्या? आइटम, मैनी आइटम बिलोंग्स टू,
मैनी कोटेशन, मैनी आइटम बिलोंग्स टू मैनी कोटेशन, हाँ ठीक है। तो इसकी सर 1 to 1, सर 1 to 1 नहीं होगा इसमें? 1 to 1 किसमें, आइटम वाले? हाँ सर। क्यों 1 to 1 क्यों होगा? क्योंकि आइटम तो एक से ज्यादा हो सकते हैं ना, राइट? लेकिन सर हर आइटम का अलग ही होगा ना? हाँ हर आइटम का अलग होगा, बट आइटम तो एक से ज्यादा है ना, हर आइटम का अलग होगा। अब हर स्टूडेंट का भी अलग होगा, ऐसे हर सप्लायर का भी अलग तुम कह सकते थे यहाँ पे, है ना? बट होगा तो हर किसी का ना, एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा आइटम्स की एक से ज्यादा कोटेशंस हो सकती हैं, है ना, सेपरेट कोटेशंस हो सकती हैं। सर ऐसे तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी सप्लायर्स तो कितने भी हो सकते हैं? इस लाइन के हिसाब से वन सप्लायर, एक सप्लायर कई कोटेशंस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। हाँ अगर इस लाइन को चेंज कर दो कि मैनी सप्लायर्स, हम इस लाइन के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो सर सेकंड लाइन में फॉर एवरी आइटम लिखा है ना सर? आइटम के लिए मतलब मोर देन वन आइटम की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे आइटम्स तो लिखा नहीं। फॉर एवरी का ही मतलब है एक से ज्यादा आइटम, ठीक है सर। हर किसी आइटम के लिए। देखो हाँ कई बार ऐसा कंफ्यूजन होगा कि तुम सोचोगे मैनी होना चाहिए था, हो सकता है, बट हमको हो सकते पे नहीं जाना है, हमको उस पे जाना है जो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इधर से तुमको पता चल रहा है कि मैनी सप्लायर्स भी हो सकते हैं, जो कि बात सही है, ठीक है, बट जो लिखा हुआ है हमने उसका बनाना है, हमको वो नहीं बनाना है कि जो लिखा नहीं है, ठीक है। जो हमको लग रहा है कि होगा, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो कोई हर आइटम के लिए, अब तुम लोग समझ रहे हो ना, हर आइटम के लिए हमारे पास यहाँ पे सेपरेट कोटेशन, सो एवरी आइटम हैज सेपरेट कोटेशंस, ठीक है। तो दोनों क्या रहेगा, और बीच में हम लिख सकते हैं सेपरेट, ठीक। फिर सप्लायर के लिए मैनी सप्लायर्स कैन कोट फॉर द सेम आइटम, तो फिर सप्लायर रहेगा कैन कोट मैनी टू वन, ठीक है। फिर मैनी आइटम्स कैन बी आउटवर्ड, ये थोड़ी इंग्लिश गलत है इसकी। सो कई एक से ज्यादा आइटम्स एक से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, कैन बी अवेलेबल या कुछ भी कर सकते हैं, अवेलेबल एट कुछ भी लिख लो, है ना, अवेलेबल एट। सो ये हो गया हमारा मैनी टू मैनी हो जाएगा, ये वाला आखिरी वाला, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट हो गया हमने एंटिटी पता लगा ली, दूसरा पॉइंट हो गया एंटिटीज के बीच में रिलेशन विद कार्डिनलिटी हमने पता लगा ली। तीसरा पॉइंट होता है इनके प्राइम एट्रीब्यूट्स पता लगाना। प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट्स का मतलब प्राइमरी की, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब प्राइमरी की। तो अब हर एक एंटिटी की प्राइमरी की हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। केवल स्ट्रॉन्ग एंटिटीज जो होंगी उनकी प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो जैसे यहां पर सप्लायर है, तो सप्लायर की प्राइमरी की क्या हो सकती है? कोई सप्लायर की आईडी होगी, है ना, सप्लायर की आईडी हो सकती है। तो अगर हमको उसमें दिखाना है, तो यहाँ पे जैसे सप्लायर है, ठीक है, और इसकी हमको एट्रीब्यूट्स कैसे दिखाते हैं पता है? मैं कोशिश करूंगा कि पेन और वो खरीद लूं अगले टर्म से, या अगले टर्म से तो नहीं हो पाएगा, 2-4 दिन कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें दिक्कत हो रही है। तो जैसे ये है हमारा इलिप्स, तो हाँ बताओ फिर
प्राइमरी एट्रीब्यूट जैसे सप्लायर का है, तो वो सप्लायर का एट्रीब्यूट प्राइमरी क्या हो सकता है? हेलो, यस सर। सप्लायर का प्राइमरी एट्रीब्यूट क्या हुआ? सप्लायर आईडी। सप्लायर आईडी, और क्या? सप्लायर की आईडी हो सकती है, और अपना इसका कोटेशन का क्या हो सकता है? कोटेशन का भी कोटेशन आईडी हो सकती है, फिर आइटम का भी आइटम आईडी हो सकती है, या आइटम नंबर हो सकता है, कुछ भी। और रिटेल आउटलेट की भी रिटेल आउटलेट आईडी हो सकती है। तो ये तो इनकी प्राइमरी कीज हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारी बाकी के एट्रीब्यूट्स, प्राइम एट्रीब्यूट्स के अलावा बाकी एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? सप्लायर की सप्लायर आईडी तो प्राइम एट्रीब्यूट हो गई। बाकी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं सप्लायर का नाम, सप्लायर का एड्रेस, सप्लायर का फोन नंबर। ये सारी चीजें क्या हैं? बाकी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और आखिरी में हम लोग ये सारे ईआर डायग्राम्स मिला के एक दूसरे से फाइनल ईआर डायग्राम बना सकते हैं। तो हो सके तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या कुछ वो कर लेना। मैं कोशिश करूंगा ये सेंड हो जाए अगर तो। सर आप ये नोट्स की फाइल ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं? हाँ, मैं शेयर कर दूंगा ये सेव करके। सर तो इसका फाइनल क्या बनेगा? फाइनल देखो, जैसे ये है हमने, हाँ ठीक है, इसको कनेक्ट करते हुए हम इसका फाइनल वो बना सकते हैं। जैसे ये बना लिया हमने, सप्लायर प्रोवाइड्स कोटेशन, ठीक है। अब कोटेशन वाला एक और है ना, नेक्स्ट आइटम है फॉर एवरी आइटम देयर विल बी सेपरेट कोटेशन। तो हर आइटम के लिए सेपरेट कोटेशन है। तो यहां से हम इसका सेकंड वाला ये हटा के हम यहीं से इधर एक लाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन दे सकते हैं यहीं से, और ये इधर कनेक्ट हो जाएगा। तो कोटेशंस, फिर तुम यहाँ लिख सकते हो आइटम हैज, फॉर एवरी आइटम हैज सेपरेट कोटेशन। तो यहाँ पे हैज आ सकता है, या कुछ भी, और जो भी तुमको वो लगे कि जो भी इंग्लिश में सेंटेंस बन सके, ठीक है। तो ये मतलब इन सब का जो एग्रीगेशन बनेगा, जो सबको जोड़ के बनेगा, वो हमारा फाइनल ईआर डायग्राम बनेगा। तो जैसे यहाँ पर इस स्टेप में हमने अलग अलग बनाए हुए हैं ना, सप्लायर हैज कोटेशन प्रोवाइड्स कैन प्रोवाइड कोटेशन, आइटम हैज सेपरेट कोटेशन, यहाँ अलग बनाया। तो ऐसे ही इन सबको जोड़ के जो जो कॉमन चीजें, जैसे कोटेशन इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों लाइन में, तो इस सबको जोड़ के इसका जो पूरा डायग्राम बनेगा वो हमारा फाइनल ईआर डायग्राम बनेगा। और एक चीज और है, इसमें अभी एट्रीब्यूट्स नहीं बने हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स यहाँ बना लेना। तो जैसे अगर कोटेशन की बात करें तो कोटेशन का क्या एट्रीब्यूट बनेगा? कोटेशन का कोटेशन आईडी प्राइम एट्रीब्यूट। और प्राइम एट्रीब्यूट के साथ एक चीज और होती है, जैसे ये इसको यहाँ से जोड़ना, ज्यादातर ऊपर ही रखते हैं इसको, ठीक है, नीचे नहीं रखते हैं। इसको यहाँ से जोड़ना, और अपना तुम इसके अंदर ये लिख सकते हो कि जो भी हमारा क्या नाम है इसकी, कोटेशन आईडी, क्यू आईडी, ठीक है। और जो प्राइम एट्रीब्यूट होता है वो हमेशा अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। सो क्यू आईडी को कर देना अंडरलाइन। ऐसे ही दूसरे एट्रीब्यूट्स भी तुम लोग यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे एक पूरा एक डायग्राम बनता है। सर जो थर्ड वाला वो मैनी टू वन है ना? मैनी सप्लायर्स कैन कोड फॉर द सेम आइटम। हाँ, कई सप्लायर्स कैन कोड फॉर सेम आइटम। हाँ, तुम वैसे ये दोनों हो सकता है, बट हाँ इसके हिसाब से मैनी सप्लायर्स, तो वो तो मैनी हो गया फॉर द सेम आइटम। तो हाँ, वन आइटम इस स्टेटमेंट के हिसाब से वन होना चाहिए, ठीक है। तो सर जैसे हम फाइनल अपना डायग्राम देखेंगे या डायग्राम, तो उसमें पहले वाला तो आइटम का कोटेशन के साथ मैनी टू
मैनी टू वो चल रहा है रिलेशन, क्या कहते हैं, मैनी टू वन वाला, और उसके बाद फिर सप्लायर का आइटम के साथ इसका भी मन चल रहा है। तो यहाँ पे सर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ गया कि आइटम जो है एक तरफ से वन है एक तरफ से मैनी है, मतलब नहीं कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ गया? किसी अब स्टूडेंट है, उसके पेरेंट तो एक ही होंगे, पेरेंट तो मतलब 2 ही होंगे, है ना? वो पेरेंट का अगर कॉलम बनेगा, बट वो बुक्स ज्यादा इशू करा सकता है, तो एंटिटी पे डिपेंड करता है ना। एक स्टूडेंट की इशूड बुक्स 1 से ज्यादा हो सकती है, बट जो पेरेंट्स हैं वो 2 से ज्यादा नहीं होंगे, राइट? तो वो तो अच्छा, सिर्फ वो जो मतलब सिर्फ जो लाइन है वही रिप्रेजेंट कर दिया है ना, मतलब जो लाइन है, लाइन मतलब जैसे 1 और m लिखा, कार्डिनलिटी वाली जो लाइन है वही रिप्रेजेंट कर रही है ना हर रिलेशन। हाँ, वो वही बता रही है हमको कि वो 1 मतलब वो है 1 से ज्यादा है या 1 है। ठीक है, अभी और भी कई चीजें हैं इसमें, ये तो अभी ऊपर से है, बट मेरे को चाहिए था मैं क्वेश्चन दूं और तुम लोग सॉल्व करो। ऐसा क्या अभी क्या हो सकता है? तुम लोग इस पे ऑप्शन है क्या इसमें? 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, इसमें तुम लोग को है नहीं क्या सेंड करने का ऑप्शन? और चैट पे भेज सकते हैं मनप्रीत ये, या फिर मैंने आपको ग्रुप में ऐड किया हुआ था, वहाँ क्वेश्चन डाल दो और आंसर्स ग्रुप पे डाल सकते हैं, राइट? फोटो खींच के या आप वैसे करवा लो, वो आपको जैसे मतलब ठीक लगे आप वैसे बोल दो स्टूडेंट्स को। मैंने ऐड किया हुआ है आपको ग्रुप में, तो अगर कोई भी आप ऐसे कुछ स्टडी मटेरियल भी अगर आप डालना चाहो तो आप ग्रुप में डाल दो। मैं वो भी डाल दूंगा, नोट्स भी डाल दूंगा। ठीक, श्योर, ओके। और वन मोर थिंग इज कि आप ना मुझे कल का टाइम बता दो मनप्रीत, एट व्हाट टाइम यू विल बी टेकिंग द क्लास टुमारो। सेम टाइम रखते हैं? नहीं, एक्चुअली कल चिराग 2 आवर्स की क्लास है, उनका एक गेस्टिमेट का भी है, तो वो लेंगे 6 to 8। क्या उससे पहले पॉसिबल है तो फिर आप मुझे बता दो। अच्छा, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, बट या बाद में ही हो सकता है, बट पहले तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सी मैं फिर थोड़ा टाइम एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। ये क्लास एक्चुअली बंद करते हैं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन तुम लोग लिख लो, ग्रुप पे भेज देना मेरे को आंसर। अभी ढंग से थोड़ा एक्चुअली बता नहीं पाया हूँ, मतलब पूरा डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, बट कोई भी डाउट हो तुम लोग ग्रुप पे या कहीं भी तुम लोग पूछ भी सकते हो, और इसका आंसर मेरे को क्वेश्चन का बता देना, ठीक है? तो क्वेश्चन तुम लोग लिख लो, मैं बोल दूं या ग्रुप पे भेज दो क्वेश्चन? सर ग्रुप पे भेज दो। ठीक है, मैं ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दूंगा, कोई भी डाउट हो तुम लोग पूछ सकते हो ग्रुप पे, और फाइनल ईयर डायग्राम मेरे को कल से पहले भेज देना, ठीक है? तो ईयर डायग्राम्स 2, 3, 4, 5 और देखेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे और देख लेंगे, पॉसिबल हुआ तो गेट वाले भी देख लेंगे, ठीक है? बट उसके लिए थोड़ा और करना पड़ेगा, ठीक है? चलो आज के लिए इतना बहुत है।